morning students. This is standard 9 video lecture 1 of the lesson 7 energy flow in an ecosystem of science part 2 biology. So we have already completed our 6th lesson, classification of plants. So today we are going to start new lesson, energy flow in an ecosystem. This lesson contains different contents: food chain and food web, the energy pyramid, biogeochemical cycles, carbon cycle, oxygen cycle and nitrogen cycle. So let us start this lesson. First, you can see 3 questions are given here looking back, which are related to your previous syllabus of 8th standard. So let us revise these questions. First question, what is meant by ecosystem? All of you know ecosystem well in 8th standard. So let us revise. What is ecosystem? Interaction between biotic and abiotic components in the particular area is called as ecosystem. Then what are biotic and abiotic components? So let us see. For example, here this pond ecosystem is given, which is aquatic ecosystem, means related to water. कोई ऐसे वाटर वाला पोर्शन है उसमें की इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे. यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया है. कौन सा एरिया है? पॉन्ड. पॉन्ड से रिलेटेड इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे. सो दिस पॉन्ड इज गिवन. लुक एट द फिगर. हियर you can see sunlight means sun, different plants, water, soil, different animals are present in water. So many things you can see here. Then which are biotic and which are abiotic components, and how the interaction takes place in the different components of the ecosystem. So यहाँ पे आपको जो एनिमल्स दिखते हैं, जो प्लांट्स दिखते हैं, उनका अगर आपने लाइफ साइकिल या उनकी अगर लाइफ साइकिल देखी होंगी, उनका लाइफस्टाइल देखा होगा, तो उनको उनके लाइफ में जैसे सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इन व्हाट वे? बिकॉज प्लांट्स आर बेसिक कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स. Why they are called as producers? Because they can prepare their own food. And जितना फूड उनको लगता है उतना वो रखते हैं, और उनका अदर जो फूड कंपोनेंट्स है वो दूसरों के लिए प्रोड्यूस करते हैं. So how they are producers? They take carbon dioxide from the atmosphere, sunlight and soil and water and mineral from the soil, and they can produce the food with the help of chlorophyll. And the process is called as photosynthesis. photosynthesis के प्रोसेस में से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड उनको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. वो इवॉल्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. एंड जितना ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन में से कुछ पार्ट वो अपने लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं. एंड अदर जो ऑक्सीजन है, एनिमल्स को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. एट द सेम टाइम एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए ज़रूरी है. मतलब इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है, सपोर्टिव होते हैं. सॉइल एंड मिनरल्स, सॉइल में से उनको वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं. यहाँ से वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं. तो सॉइल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. सो एनिमल्स के लिए भी ये सब ज़रूरी है. इसके बाद में जब एनिमल्स की, प्लांट्स की डेथ हो जाती है, यहाँ नीचे अगर वो आ गए, तो इसका डिकम्पोजिशन करके फिर से उसको सॉइल में मिक्स करना, फिर से इसमें के गैसियस कंपोनेंट्स, जो वाटरी कंपोनेंट्स है, जो मतलब सॉलिड कंपोनेंट्स है, उनको सबको रिलीज करने के लिए डिकम्पोजर्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कुछ बैक्टीरिया,
fungus, and number of microorganisms are present in this ecosystem. So यहाँ पे बायोटिक फैक्टर क्या हो गए? बायोटिक रिलेटेड टू लाइफ. बायोटिक फैक्टर्स आर प्लांट्स, animals, microorganisms. These are the biotic factors in an ecosystem. So what are abiotic factors or abiotic components of an ecosystem? Are air, water, soil, sun, and so minerals, etc. are abiotic components of an ecosystem. So abiotic and abiotic components and their interaction in the particular area is called as ecosystem. So second question is, which are the different types of ecosystem? ecosystem के different types कौन से हैं? Mainly ecosystem के 3 types हैं. जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स लैंड के ऊपर जो भी रीजन प्रेजेंट होते हैं, रॉकी एरिया है, जैसे ग्रासलैंड है, कहीं पे ग्रासलैंड है. उसके बाद में डेजर्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट हिल रीजन में या फिर पोलर रीजन में आइस है, आइस के ऊपर जो इकोसिस्टम है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडेड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ. Different ecosystems are there. Then these are some examples: grassland ecosystem, rock ecosystem. Okay. Then aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem, aquatic the word is related to water. जो भी वाटर बॉडीज है वो पर्टिकुलर वाटर बॉडीज से रिलेटेड इकोसिस्टम को बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम. सच एज पॉन्ड इकोसिस्टम जो हमने यहाँ पे देखी है, एक पर्टिकुलर पॉन्ड से रिलेटेड बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन. देन मराइन इकोसिस्टम मीन्स सी, ओशंस, जिस उसमें जो भी इकोसिस्टम्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और उनका इंटरेक्शन वो इंक्लूड होता है मराइन इकोसिस्टम. उसके बाद में रिवर की अलग एक इकोसिस्टम होती है. एक पर्टिकुलर स्ट्रीम अगर है तो वो स्ट्रीम से रिलेटेड जो इकोसिस्टम होती है, ये सब आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में. देन एरियल इकोसिस्टम जो हवा के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स की एरियल इकोसिस्टम. देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. These are some types of ecosystem. Then third question is, how do interactions takes place between biotic and abiotic factors of an ecosystem? So interaction takes place between biotic and abiotic components in an ecosystem for production of energy and transfer of energy from one level टू द अनदर लेवल. एक लेवल से दूसरी लेवल तक एनर्जी का ट्रांसफर इकोसिस्टम में होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन इकोसिस्टम में होता है. तो उसके लिए बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है. मतलब वो सभी अपने आप में इंटर रिलेटेड होते हैं. तो वो इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन पर्पज, फॉर फोटोसिंथेसिस पर्पज. These are inorganic or abiotic components. Then sunlight is also required for living organisms. So this is also abiotic component. Soil is also required for the interaction between. ये सॉइल में भी इंटरेक्शन होती है सॉइल में. देन वाटर के साथ भी इंटरेक्शन होता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ऐसे बहुत सारे मतलब अबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स दोनों भी इम्पॉर्टेंट है. मतलब प्लांट्स एंड एनिमल जितने इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, उतने ही इनऑर्गेनिक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स भी इम्पॉर्टेंट है. दोनों के इंटरेक्शन से ही आगे बढ़ती है इकोसिस्टम. ओके, गॉट इट? सो यू हैव टू राइट दिस 3 क्वेश्चंस इन योर notebook and you have to read last year's lesson. Next, first point of the lesson, energy flow in an ecosystem.
energy which is produced at the basic level by plants, how this flow goes on or passes on to from one level to another level, वो हम देखने वाले हैं. सबसे पहले we have already learned the classification of organisms, living organisms according to their mode of nutrition. ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमने उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा हुआ है. लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हेटरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सैप्रोफिटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ऑटोट्रॉफिक में क्या है? The plants are autotrophic because they can produce their own food. Heterotrophic organism cannot produce their own food. They have to depend upon another organisms for their nutrition need of nutrition. Then saprophytic organisms are another type of organisms which live on dead and decaying organic matter in the nature. तो ये 3 टाइप के मोड हमने पढ़े हैं. So according to mode of nutrition and related to ecosystem, they are again classified as producers, consumers, saprophytes and decomposers. Producers. So producers are the organisms at basic levels. Example plant, they can prepare their own food. ये कितने बार भी आप लोगों को पता है. So ये फूड प्रिपेयर करते हैं, अपने खुद के लिए जितना लगता है वो कंज्यूम करते हैं, एंड दे स्टोर द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड इन देयर लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. मतलब उनके पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में वो फूड को स्टोर करते हैं एंड उसे कोई और कंज्यूम करता है. सो दीज आर प्रोड्यूसर्स एंड देन नेक्स्ट लेवल इज कंज्यूमर्स. ये जो फूड प्रोड्यूस हुआ है इनको कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हर्बिवोर्स मीन्स काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा, डियर and so many organisms are herbivores. They eat or they take producers as their food. Producers means plants as their food. Such organisms are called as herbivores. Then secondary consumers which feed on the primary consumers means herbivores. उन पे फीड करने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ग्रास हॉपर प्लांट पे फीड करता है तो उस पे फीड करने वाले जैसे फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्निवर्स. देन टर्शरी कंज्यूमर्स, स्नेक फ्रॉग को ईट करता है, सो स्नेक्स आर टर्शरी कंज्यूमर और टॉप लेवल कंज्यूमर्स और अपेक्स लेवल कंज्यूमर्स. अभी सब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं एंड सभी टाइप के कंज्यूमर्स जब डेड हो जाते हैं, जब इनकी डेथ होती है, इनको ईट करने वाले होते हैं सैप्रोफाइट्स, जो कंज्यूमर्स आफ्टर डेथ. व्हाट आर सैप्रोफाइट्स? सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स इन द नेचर. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ये कंज्यूम करते हैं. एंड व्हाट आर डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स which decomposes any organism after its death. ये organisms जैसे प्रोड्यूसर की डेथ हो, कंज्यूमर्स की डेथ हो, सैप्रोफाइट की डेथ हो, ये तीनों ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई डिकम्पोजर्स की डेथ हो, तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नेचर में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है उनके कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज करके उसको नेचर के साथ मिक्स करने का काम, सॉइल के साथ मिक्स करने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. हमने बेसिक इकोसिस्टम को बेसिकली समझ लिया है. सो नेक्स्ट कंटेंट विल सी टुमारो एंड or in the next video, that is food chain and food web. What is food chain and what is food web? We'll say in the next video.
Till then you have to write these all questions. You have to read this lesson as well as the lesson in 8th standard, and be prepared for next video.